بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق میں تو اپنے رب سے یہی چاہتا تھا، یہی توقع تھی کہ مجھے جنت ملے گی. ایسے ملے گی؟ نامہ اعمال محفوظ کیسے ہوں گے؟ جس کو الٹے ہاتھ میں اس کو بھی قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ کیا کہا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ. جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا، چیختا ہوا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ ملی ہوتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب کو نہ جانتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، مرنا ہی میری زندگی کو ختم کر دیتا، موت مجھے تباہ کر دیتی، موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ہلک عنی مالیہ، کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا. جس کو میں جمع کر کے گاڑ کے رکھا کرتا تھا، میرے مال میرا کام نہ آیا. وہ کیا کہیں گے؟ یہ کاغذ پہ کیا کہیں گے؟ جس مال کو میں سیب کے رکھا کرتا تھا، وہ مال میرے کام نہ آیا. حالک عنی سلطانیہ، میرا چاہو جلال، میرا روب و دبدبا بھی کام نہ آیا، میرا عہدہ بھی کام نہ آیا، میری ڈگری بھی کام نہ آئی، میری اونچی پوسٹ بھی کام نہ آئی، میرا ایم پی بننا کام نہ آیا، میرا ایم ایل اے بننا کام نہ آیا، میرا خلیفہ بننا کام نہ آیا، میرا پرائم منسٹر کی کرسی پر ہونا کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، مجھے ہلاک کر دیا، میرے عہدے نے، یعنی میرا عہدہ میرے کوئی کام نہ آیا. جس منصب پر میں فائز تھا وہ منصب میرے کام نہ آیا، ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. بڑی بڑی اونچی پوسٹ اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی. جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی کہے گا، کھولے گا، پڑھے گا، کہے گا اے اللہ یہ کون سی کتاب تو نے میرے ہاتھ میں پڑھوا دی. اس نے تو ایک ایک سیکنڈ کی برائیوں کو بھی نوٹ کر دیا، ایک بھی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی باقی نہ چھوڑا، سب کو لکھ لیا. قرآن کتنا ڈرا رہا ہے. سوامی جی میٹر ہو کے کیا کہتے ہیں؟ وہاں صاحب ایک ایک سیکنڈ کی بات اللہ کیسے لکھ لے گا، ایک ایک لمحے کی بات کیسے نوٹ ہوگی، اس کے پاس کیسے محفوظ ہوگی. نہیں مانتا میں. کوئی آدمی کہے مولوی صاحب 3 سال پہلے آپ نندی کٹکور میں آئے تھے، آپ نے یہ بات کہی کہ غلط نہیں بولنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہٹ، کچھ نہیں بولا تھا، جو تم کہہ رہا ہو غلط ہے. نہیں، میں نے ایسا نہیں بولا. ارے کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ کی تقریر ریکارڈ ہے. کیسے ریکارڈ ہے؟ کہو تو سنا دوں. 3 سال 10 سال 15 سال میرے مرنے کے بعد بھی آپ میری آواز کو محفوظ کیے ہوئے. اور بولو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان کے کتنے بڑے عالم تھے. آج بھی ان کی کیسٹیں سنی جا رہی ہیں، آج بھی ان کی تقریر ریکارڈ ہے. جب سائنس نے ایک مشین، اللہ نے سائنسدانوں کو عقل دی اور اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے وہ مشین بنائی کہ ایک انسان کی آواز کو 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال 100 سال آرام سے وہ قید کر سکتا ہے. بھائی آج ریکارڈ کر لی، 10 سال تک چلی، آپ مر گئے، آواز پھنسنے لگی، آپ نے دوسری کیسٹ میں ڈب کر لیا، دوسری کو تیسری میں کر لیا. ایسے کرتے کرتے آپ 100 سال بھی اس کی حفاظت کر سکتے ہو. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں یہ ٹیپ ریکارڈ کی شروعات ہو رہی تھی دھیرے دھیرے. ان کی بھی چند کیسٹیں دلی کے اندر موجود ہیں. ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی چند کیسٹیں دلی کے اندر مرکز میں آج بھی موجود ہیں. بتائیے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سن 1948 کے اندر وفات پائے، ان کا انتقال ہوا، اور 1948 سے اب تک ان کی آواز ریکارڈ ہے. جب ایک انسان کی آواز کو 50 سال 100 سال کے لیے ریکارڈ کر سکتا ہے تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشین نہیں ہوگی کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے ریکارڈ کو تیار کر لے؟ آپ کہو گے ساری دنیا کے لوگوں کا ریکارڈ، آپ
वीडियो कैसेट बना रहे हो, आपने इस वीडियो में यहाँ जितने लोग हैं सबको रिकॉर्ड कर लिया, सबको बंद कर लिया या नहीं? अरे इतना ही नहीं, आपने जो इस वक्त कान खुजा रहा है इस तरीके से सर, और आपका कैमरा वहां घूम गया, तो आपने उसके सर के खुजाने की एक्टिंग को भी रिकॉर्ड कर लिया। अल्लाह ने भी इसी तरीके से तुम्हारी एक एक एक्टिंग को रिकॉर्ड कर रखा है। और सबसे बड़ा टेप रिकॉर्ड ये जमीन खुद है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन एक एक इंसान की एक्टिंग तो उसकी खबरों को कयामत के दिन बयान करके पेश करेगी। ये सब साइंस, तुम चीजें बनाओ वीडियो, ईमान हमारे मजबूत होंगे। या अल्लाह, ये मौलवी दूसरे ही स्टाइल का है, बड़ा अजीब मामला है इसका। कहने लगे मौलवी साहब बड़ी मुखालिफत है। मैंने कहा ये सब मुझसे मत कहा कर, बड़ी मुश्किल से जलसा हुआ। मैंने कहा ये सब ना कहा कर। एक ने कहा दिली तकलीफ होती है, आप भी तो हक बात बोलते हैं। मैंने कहा मेरे भाई रंजीदा होने की जरूरत नहीं, मैं तो खौफजदा नहीं होता हूं, तुम क्यों होते हो? बोला हक को क्यों रुकवाते हैं? मैंने कहा तो क्या कभी झूठ को भी रुकवाया गया है? तारीख बताओ, कभी झूठ को भी रुकवाया गया है? आज कोई फिल्मी हीरो आ जाए, कोई जाएगा उसके खिलाफ रिपोर्ट करने? बता दो, कोई जाएगा? जबकि जानता है ये गलत है, जानता है ये सिर्फ नौटंकी है। और फिल्मी दुनिया में भी आप जानते हैं कि सब जो पहाड़ों से कूद रहे हो, ये कर रहे, वो कर रहे, ये कमीने जो आज पहाड़ों से कूदते हुए और गाड़ियों को उड़ाते हुए जो तुम्हें दिखाई देते हैं, इन सबको कश्मीर की वादी में भेज के दिखा दो, इनकी बहादुरी का पता चल जाएगा कितने बड़े ये बहादुर हैं। जरा गौर कीजिए आप, इन जो अपने आप को हीरो कहलाते हैं, जिनको आप अपना फैन कहते हैं, इनको जरा कश्मीर की वादी में भेज दो। आज कोई फिल्म कश्मीर में नहीं बनाएंगे, क्यों? डर है कहीं दाऊद इब्राहिम के आदमी ना मार दें, डर है कि कहीं अलकायदा ना मौजूद हो, लश्कर तोयबा ना होना भी चाहिए। डर इंसान को अपनी जान का एहतियात बरतना भी चाहिए। अपने आप को ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में जानबूझ के न डालो, नहीं डालना। लेकिन इतना झूठ, आज किसी ने उसका इनकार किया? झूठ के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा होता है? कभी नहीं होता। बताइए किसी झूठ के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ? नहीं हुआ। एक आदमी पहाड़ से कूदा, कभी आपने कहा इसको निकालो ये झूठ है? कभी नहीं होगा। सुन लो, जो जितना ही हक होगा उसको उतना ही रुकवाया जाएगा। ये आप क्या हैं? और जो जितना ज्यादा हक बोलने वाला होगा उसको उतना ही ज्यादा रुकवाने के लिए लोग प्रेशर दिखाएंगे। ये एक मुसल्लम उसूल है। हजरत उमर फारूक को लोगों ने उतना नहीं रोका, अबू बकर को उतना नहीं रोका जितना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोका, क्योंकि नबी से ज्यादा सबसे हक बोलने वाला और कोई था ही नहीं। नबी से ज्यादा कोई हो सकता? पहली दावत पेश की, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। सबसे पहला ताना सुनना पड़ा खुद अपने चचा का, तब्बल या मोहम्मद लिहाजा जमाताना, बर्बाद हो जा तू, क्या इसलिए तूने जमा किया हम सबको पहाड़ के नीचे? पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली दावत, खुलेआम पहला मौका, सबको जमा किया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। सबसे पहला ताना किसने मारा? सगे चचा ने। तुम तो गैर होकर मेरी मुखालिफत कर रहे हो, हमारे तो घर से मुखालिफत होनी चाहिए थी। घर से मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरा बाप भी अहले हदीस थे, मेरे दादा भी अहले हदीस। मेरी मुखालिफत घर से होती तो शायद मैं कुछ और चमकता, शायद मेरी कुछ और बात होती, शायद मेरी तकरीरों में कुछ और इनकलाब आता। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे घर से मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए अभी मैं इतना नहीं मंझा हूं जितना तुम सोच रहे हो कि मौलाना की बड़ी मुखालिफत होती है। मैं तो सोच रहा था कि मेरी मुखालिफत मेरे घर से, मेरे खानदान से होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि घर में आंख खोली तो अहले हदीस घराना, रिश्तेदारों को देखा तो अहले हदीस घराना करने वालों के साथ साथ कुछ आपका भी कसूर है, कुछ आपका भी कसूर है। और वो कसूर ये है कि मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ कोई काम आप नहीं करते हैं। आपने जलसा रखा था तो आपको पूरी तंजीम, पूरी जमात, पूरे जमइयत को बिठाना चाहिए था और उनसे राय करते, उनसे मशवरा करते। हाँ, उस मौके पर कोई अगर ये कहता कि मौलाना जर्जी साहब ऐसा बोलते हैं, उनको नहीं बुलाएंगे, तो आप ये कहते उनसे मौलाना जर्जी साहब को टॉपिक दे दीजिए, मौजू दे दीजिए। आप जो नहीं बुलवाना चाहते आप उनको कह दीजिए ये सब बातें नहीं बोलेंगे। मेरे भाइयों, यहाँ के माहौल से आप वाकिफ हैं, आप मुझे जो मौजू देंगे वो मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ के हालात से मैं वाकिफ नहीं। जितनी जगह पर मैंने नेता लोगों के बारे में बोला है, मुझसे कहा गया है इसलिए मैंने बोला है, वरना मैं जानबूझकर किसी को मुसीबत में नहीं डालता हूं। और आज तक कोई मुसीबत किसी के ऊपर पड़ी नहीं है,
मुझसे कह दिया है कि यहाँ मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए, यहाँ दर्दनाक मौजू होना चाहिए, मैंने संस्कृत छोड़ दी, मैंने रामायण छोड़ दी, मैंने आज कयामत का मौजू ले लिया है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मिलकर इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ, मिलनसारी के साथ दावत और तबलीग का काम करें। मेरे भाइयों, मैं लैला मजनू की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ आपके सामने। आप अगर अमीर हैं, आप अगर सेक्रेटरी हैं, आपको कौम ने इसीलिए अमीर बनाया ताकि आप दीन का काम करें। मैं आलिम हूँ तो मुझे भी अल्लाह ने इसीलिए आलिम बनाया है कि मैं बल्लिगु वलो आया, कुरान की एक आयत मालूम है तो उसको भी दूसरों तक पहुंचा दूं। जब मेरा और आपका दोनों का मकसद एक है, आपको जमात का काम करना है और मुझे जमात के तहत दीन की दावत और तबलीग करना है, तो जब हम दोनों एक हैं तो आओ इसको हम मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप भी जो प्रोग्राम करें जमीयत से और जमात से मशवरा करें, इंशाअल्लाह आप इस्लाही प्रोग्राम रखें। लोग थक चुके हैं, 1400 साल से शिर्क और बिदअत के मौजू को सुनते सुनते लोग उकता गए हैं। जो मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं, नहीं तो आप ना समझाइए, आप सुन लीजिए, जो सऊदीया जाएगा बदल के आएगा, जो भी हज करके आएगा कन्वर्ट होके आएगा। अल्लाह ने वो मरकज खुद ही बना दिया है, ऐसा हज करने गया वहां जिस नबी की मस्जिद में जहां से इस्लाम फैला, यहाँ से अमीर बोली जाती तो हम अपनी मस्जिद में क्यों ना बोले। मेरे भाइयों, वहां से आता है तो कन्वर्ट होके आता, बदल के आता, नहीं बदलता है तो कम से कम अपने सहन को अहले हदीसों के हक में अच्छा जरूर कह देता है कि ये भी सही है। इसलिए इनको ज्यादा रगड़ने की और जिबा करने की जरूरत नहीं है, वरना कुरान की आयतें बहुत हैं, हदीसें बहुत हैं, तकलीद के खिलाफ भी हैं, चारों इमामों का कोई सबूत। इसलिए भी हम आपसे कह सकते हैं कि कुरान की किसी भी आयत से और हदीस की किसी भी किताब से आप इस साबित ही नहीं कर सकते हैं कि चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद करो। पूरा कुरान पढ़िए, चारों 6 हदीसें पढ़ डालिए, सियासत्ता पढ़ डालिए, आप साबित ही नहीं कर सकते। बल्कि मैं इतना कहूंगा कि तकलीद का सबूत इतना मुश्किल है कुरान हदीस से देना, जैसे इस पत्थर को खोद कर यहाँ से तेल और पेट्रोल के धुएं निकालना है। जितना ये मुश्किल है उतना ही तकलीद का सबूत देना मुश्किल है। जितना बकरी के थन से निकला हुआ दूध बकरी के थन में दोबारा वापस करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद का सबूत देना कुरान हदीस से उतना ही मुश्किल है। आप पढ़े कहाँ हैं मेरे प्यारे साथियों। इतनी सी बात कहकर आगे निकलता हूँ, जरा गौर कीजिएगा मैं बात क्या कर रहा था। मेरी बात पहुंची थी स्वामी जी की, उन्होंने क्या कहा था कि ये नेकियां और बुराइयां तो ये जो है कैसे रिकॉर्ड होंगी। आज टेप रिकॉर्ड में हमारी कैसेट रिकॉर्ड है, आज वीडियो में हमारी सीडी रिकॉर्ड है, हमारी सीडी प्लेयर में हमारी सीडी कैसेट रिकॉर्ड है। उसको आप 10 साल के बाद भी सुनेंगे तो आप वैसे ही देख लेंगे जैसे आज हम बोलते हुए हमारे कहाँ हाथ उठ रहे, कहाँ हमारे होंठ हिल रहे, ये भी रिकॉर्ड है आज और हम इनकार नहीं कर सकते। और सुनिए, देखिए वहां अपना काम हो रहा है, आप जरा अपना काम कीजिए, सुनिए। वहां तो ये हालत होगी, अल्लाह इन पैरों में मोहर लगा देगा, पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी, हाथों में बेड़ियां पड़ी होंगी। क्या है? ले लीजिए हाँ ले लीजिए मतलब हाँ ठीक है, हमने रख दिया इसको, अभी खाएंगे रोजा काट दिया है। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका। 3-4 डंडा ले थोड़ा सा रूप किया ले करेगा बहन के लोग। हाँ तो मेरे भाइयों, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। कयामत के दिन ये जो हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी, ज़बान में भी मोहर लगा दी जाएगी। और अल्लाह ताला ये आज़ाद से कहेगा, हाथ पैरों से बोलो। ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे, ये सारी चीजें बोलेंगी। और इंसान कहेगा इस तरीके से देखकर, अरे कम बख्तो, मैंने तुम्ही को तो जहन्नम से बचाने के लिए झूठ बोला था और तुम कह रहे फला जगह उठा, ये फला जगह उठा। ये इंसान के हाथ पैर गवाही देंगे। मेरे भाइयों, आइए जरा साइंस से मिलती जुलती एक आयत में आपके सामने और पढ़ता हूँ, सूरत पूरी। जमीन पूरे जोर शोर के साथ, शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। जमीन में भूकंप आएगा,
देखना कैसे आ रहा भूकंप। ये गुजरात वाला भूकंप नहीं है, जरा देखिएगा ये भूकंप कैसे आ रहा है। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन अपने अंदर के बोझों को बाहर निकाल देगी। बोझ कई किस्म के हैं जमीन के अंदर। एक तो खुद इंसान इस कब्र के अंदर दफन है, वो इंसान कब्रों से निकलेंगे, वो बोझ सोना और चांदी का खजाना जो जमीन के अंदर मौजूद है वो निकलेगा। उस वक्त इंसान इतना अमीर होगा कि सोना जमीन पे पड़ा होगा, कोई उठाने वाला नहीं होगा। चांदी जमीन पर पड़ी होगी, कोई उठाने वाला नहीं होगा। लोग मदरसे की तरफ ज़कात ले लेंगे दौड़ेंगे, लेकिन मदरसे ज़कात लेने वाले नहीं मिलेंगे, खुद उनके पास इतना होगा। वक़ाल इंसान, जमीन से मुर्दे सोने चांदी निकलेंगे, इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो रहा है। वक़ाल इंसान, इस जमीन को क्या हो गया। लिअन्ना रब्बका वहालहा, ये सब कुछ तेरे रब के हुक्म से होगा, अल्लाह के हुक्म से होगा। जरा देखिएगा साइंस, यौमइज़िन यज़दुर यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा बिअन्ना रब्बका वहालहा। उस दिन जमीन अपने अंदर के अपने ऊपर किए हुए इंसानों के सारे करतूतों को बयान कर देगी। आय अल्लाह, मेरे ऊपर फला आदमी ने मस्जिद बनाई थी, अच्छा काम किया था, और फला आदमी ने दारू का अड्डा बनाया था, फला आदमी ने वीडियो हॉल बनाया था, फला आदमी ने गलत चीज जिना का अड्डा और तबाही का चकला बनाया था। आय अल्लाह, फला आदमी ने ये किया, जमीन बयान करेगी। स्वामी जी को इस पर एतराज है, क्या है कि ये जमीन बेजान है, बोलेगी कैसे। कभी बेजान चीज बोलती हुई है, ये बोतल है बेजान है, कभी बोलेगी, ये गिलास बेजान है, कभी बोलता है। अब किसी को ना सुनाई दे तो इसमें मेरा क्या कसूर। जमीन को जरा आप गिलास को जमीन पे मारिए, आवाज होगी टूटने की, कांच की, ये गिलास टूटता हुआ नजर आएगा। फेंक के देखिए, टन सी आवाज आएगी। भाई ये भी तो बेजान है, माइक हमारे सामने देखिए बोल रहा है ना। आप कैसे कह रहे हैं कि बेजान चीज नहीं बोलती। इसमें जान तो नहीं है, लेकिन ये कैसे बोल रहा। स्वामी जी को ये मौजूदा चीजें नहीं दिखाई, पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि जमीन बेजान है, नहीं बोलेगी। कुरान झूठा है, नाउज़ बिल्लाह, यहां तक लिखा कुरान झूठा नहीं, हम नहीं मानेंगे। आगे देखिए, अभी बताता हूं कि बेजान चीज कैसे बोलेगी। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, उस दिन इंसानों के अमाल नामे खोल दिए जाएंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन्नास, यस्दुरु यर्जिउ के माने उस दिन लोग लौटेंगे अश्तातन, मुतफर्रिक़ होकर, फिरके टोली में बटे होंगे, लौटेंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, ताकि वो अपने अमाल नामे देख लें। अमाल नामे खोल दी जाएंगे, लो देखो। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने कोई नेकी की होगी तो उसको भी दिखा दिया जाएगा, और राई के दाने के बराबर यानी चींटी के सर के बराबर भी अगर तुमने कोई बुराई की होगी तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे। रिकॉर्ड मालूम है, इतना सा भी कुछ किया होगा अच्छा काम तो वो भी महफूज होगा, इतना बुरा काम किया होगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा, महफूज होगा। इस कुछ मैं बता चुका हूं मेडिकल आज की साइंस से। अब आइए जरा मैं बताऊं बेजान चीज बोलेगी कैसे। इसके बाद मैं एक हदीस सुनाऊंगा आपको, बड़ी प्यारी हदीस है और आज की साइंस इस पर बड़ी अच्छी तरीके से सजदा कर रही है। जरा सुनिएगा, अल्लाह ये बेजान चीज कैसे बोलेगी। रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? प्लास्टिक, लोहा, चुंबक, कोई जानदार तो नहीं, आदमी तो नहीं घुसा उसके अंदर, लेकिन आज ये बोलता हुआ नजर आता है। रेडियो बेजान है लेकिन बोल रहा है। अल्लाह ने इस जमीन से ही लोहा पैदा किया, इस जमीन से ही प्लास्टिक पैदा की, इस जमीन से ही चुंबक पैदा किया, इस जमीन से ही अल्लाह ने रेडियो में लगे हुए सारे औजार पैदा किए। तो जिस जमीन से ये सारी चीजें पैदा हुई वो तो बोल रही है, और जो इन चीजों को पैदा करेगी वो नहीं बोलेगी। टेलीविजन कैसी बेजान है? अरे टेलीविजन में आने वाली मेरी तस्वीर भी तो बेजान है, लेकिन बेजान तस्वीर भी होंठ हिलाती हुई नजर आएगी, हाथ हिलाती हुई नजर आएगी। बेजान चीज को आपने बोलने पर मजबूर कर दिया अल्लाह की दी हुई अकल से, तो क्या अल्लाह जमीन को बोलने पर मजबूर नहीं करेगा? क्या अल्लाह के पास
یہ قدرت نہیں ہے. زمین بھی بولے گی, ریکارڈ کر رہی ہے سب. آج جو تقریر ہو رہی ہے اس کو بھی یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. قیامت کے دن بولے گی یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, بچ کے نہیں بھاگو گے, بچ کے نہیں نکل سکو گے. کہیں بھی جا کر دیکھو, نہیں نکل سکتے ہو تو بچ کر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, ہائے سارے لوگوں, ساری انسانیت, مانو گڑ مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس, اے ساری جگت کے مانو گڑ, اتقوا ربکم, اپنے پرورش کرنے والے سے ڈرو, اپنے مولا سے ڈرو, اپنے پالنہار سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا. یہ بھوکمپ بڑا سخت ہوگا. کیسا یہ بھوکمپ ہوگا قیامت کے دن کا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے, اس دن تم دیکھو گے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ بیٹھے گی, اور ہر حاملہ جانور, ہر دودھ پلانے والا جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا, عورت بھی چھوڑ دے گی. اور ہر حاملہ جانور کو, عورت کو, سب کو, اور حاملہ کو تم دیکھو گے مارے خوف کے, مارے دہشت کے, قیامت کے زلزلے کے خوف سے تم ان کو دیکھو گے کہ ان کا حمل زمین کے اوپر گر جائے گا. وَتَضَعُ ذَاتَ حَمْلٍ حَمَلَهَا, ان کا حمل زمین پر ضائع ہو جائے گا, گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, لوگ نشے میں ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ نشے کا جام نہیں پیا ہوگا, شراب نہیں اتاری ہوگی انہوں نے, پھر بھی نشے میں ہوں گے. کیوں؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, تیرے رب کا, اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا اس کی سختی کی وجہ سے. ذرا غور کرنا, اس میں ایک چیز کیا کہی گئی, تم دیکھو گے اس دن ہر حاملہ کو کہ وہ اپنے حمل کو گرا دے گا, اور ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. بھوپال کے اندر آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے گیس کانڈ ہوا تھا. سوچا آپ نے, بھوپال کے اندر 10-15-12 سال پہلے گیس کانڈ ہوا تھا. گیس چھوٹ گئی تھی, وہاں لوگ بھاگے. گیس کی حالت یہ تھی کہ لوگ رات میں اپنے منہ پر کپڑا لاد کے ڈھک کے بھاگے. شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگا, بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگا, باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگا, بیٹا باپ کو چھوڑ کے بھاگا, ماں بیٹی کو چھوڑ کے بھاگی, بیٹی ماں کو چھوڑ کے بھاگی, بھائی بہن کو چھوڑ کے بھاگا, بہن بھائی کو چھوڑ کے بھاگا. 15 سال پہلے, آج بھی نظارہ دیکھو, پوچھو وہاں سے. میرا بھوپال میں پروگرام ہوا تھا, لوگ مجھے وہ گیس کی جگہ دکھانے گئے تھے, وہاں کے نوجوان لڑکے, انہوں نے بتایا تھا کہ آج بھی وہاں کے لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ مل رہا ہے جو اس گیس کانڈ کے شکار ہوئے تھے. بتاتے ہیں کہ جو لوگ لحاف سے منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے, جن کا لحاف سے منہ کھلا ہوا تھا وہ بچے بھی مر گئے, وہ عورتیں بھی مر گئی, وہ آدمی بھی مر گئے, اور جن کو بھاگنے کا موقع ملا وہ بھاگے. باپ بیٹے کو چھوڑ کر, بیٹا باپ کو چھوڑ کے, ماں بیٹی کو, بیٹی ماں کو, بھائی بہن کو, بہن بھائی کو, اس طریقے سے لوگ بھاگے. یہ ایک چھوٹی سی قیامت کا حال تھا, ایک چھوٹی سی گیس کا حال تھا. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس گیس کا عالم کیا ہوگا, اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور سوچئے کہ انسان کی حالت اس موقع پر کیا ہوگی. ہر حاملہ عورت کے حمل گر جائیں گے, حاملہ جانوروں کے حمل گریں گے, دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی, بھول جائے گی. کل مرضعۃ عما ارضعت, بھول جائے گی اس کو. دودھ پلانے والا جانور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گا, عورت بچے کو. یہ حالت ہوگی قیامت. میرے پیارے بھائیوں, آئیے ذرا اس حدیث کو دیکھیں ہم, اور قرآن کی اس آیت سے ذرا تیزی کریں ہم. قرآن نے کیا کہا, کتنی بڑی سائنس. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورہ یاسین میں. یہ تم جو دیکھ رہے ہو سورج, چاند, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا, اور چاند کبھی سورج کو نہیں. سورج اپنے دائرے میں تیر رہا ہے اور چاند اپنے دائرے میں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے, سائنس کو
اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کافی ٹائم چاہیے کہ زمین چل رہی ہے یا یہ سورج اور چاند. آج کی سائنس کیا کہتی ہے, لیکن سائنسدانوں سے میں اتنا ضرور کہوں گا, آج سے 40 سال پہلے یہ یورپین فلاسفر, یہ پرانے سائنسداں سورج اور چاند کے ٹھہرنے کے قائل تھے, اور زمین سورج اور چاند کے چلنے کے قائل تھے, اور زمین کے ٹھہرنے کے قائل تھے. اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین چل رہی ہے, سورج اور چاند اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے. کل کہتے تھے کچھ, آج اس کا الٹا. ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری یہ غلطی بھی سامنے آ جائے اور کل تم کچھ اور کہنے لگو. میں مشورہ دیتا ہوں, آئے سائنٹیفک لوگوں, پہلے تم کم سے کم اپنا نظریہ ایک جگہ جماؤ تو صحیح. پہلے تم فیصلہ تو کرو, اس کے بعد قرآن سے دلیلیں ہم دینا شروع کر دیں گے. تم پہلے ہمیں صحیح یہ تو بتلاؤ کہ زمین چل رہی ہے یا آسمان. تم ایک عقیدے پر جم تو جاؤ اور اس کے بعد میں پھر ہم دلیلیں دینا شروع کر دیں گے. تم پہلے کچھ کہتے تھے, کبھی کچھ کہتے ہو, تم پہلے ایک عقیدے پر جمو تو صحیح. آپ کو معلوم ہے امریکہ نے کیا کہا, میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور وہاں جھنڈا میں نے لہرا دیا ہے. جھنڈا میرے آدمی گاڑ کے واپس آ گئے. جب زمین پر آئے تو لوگوں سے پوچھا کیا تم نے کیا کیا, بولے چاند پر ہم چلے گئے. امریکہ نے کیا کہا, ہم چاند پر چلے گئے. وہاں کے لوگوں نے کیا کہا, میں نے اپنا جھنڈا وہاں گاڑ دیا ہے. برطانیہ کے لوگوں نے کہا, وہ لندن کے لوگوں نے یہ ابھی ریسرچ کر کے ساتھ لوگوں نے کہا ہم جا رہے ہیں چاند کے اوپر. ہو گئے, وہ کہنے لگے کہ ہم بھی چاند پر ہو کے آئے. کہا تم نے چاند پر کیا دیکھا, تم نے چاند پر کیا دیکھا. لندن کے لوگوں نے کہا ہم نے چاند پر دیکھا کہ وہاں ہوا نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے, وہاں بڑے بڑے پہاڑ ٹیلے, وہاں ہوا نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے. امریکہ کے لوگوں سے پوچھا تم نے کیا دیکھا, بولے ہم تو آکسیجن لے کر گئے تھے اور وہاں ہوا نہیں ہے, پانی نہیں ہے. کہا جب ہوا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو تم وہاں کیا کر کے آئے ہو. کہنے لگے میں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے, اور چلو میں تم کو دکھاؤں دوربین سے. یہاں سے اوزون لیئر پار کرنے کے بعد کرۂ نار سے گزرو اور میں تم کو دکھلاؤں یہاں سے 2000 کلومیٹر دوری کے پاس چلو, اور وہاں سے میں تمہیں دوربین سے دکھلاؤں کہ امریکہ کا جھنڈا چاند پر لہرا رہا ہے. برطانیہ کے لندن کے لوگوں نے کہا امریکہ تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں. کہا کیوں, کہا تو نے کہا کہ وہاں ہوا نہیں ہے, وہاں پانی نہیں ہے. جب وہاں ہوا نہیں ہے تو تیرا جھنڈا ہوا میں لہر کیسے رہا ہے. جب وہاں ہوا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تو جھنڈا لہرا کیسے رہا. امریکہ خاموش. پتہ یہ چلا کہ اس وقت اب ان کی باتوں پر بھی سب کی نظر پڑ چکی ہے کہ یہ چاند پر گئے بھی ہیں یا نہیں گئے. میرے پیارے ساتھیوں, انسان چاند پر جائے یا نہ جائے, اسلام پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ چاند کیا, یہ سورج, یہ ستارے, یہ کہکشائیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. تم وہاں تک جاؤ تو صحیح, تمہیں ہماری قدرت کی نشانیاں ملیں گی. انسان چاند پر چلا جائے, سورج پہ چلا جائے, کہکشاؤں تک چلا جائے, پھر بھی وہ اللہ نے کیا کہا, ہم نے تو تمہارے تابع کر دی, جاؤ تو وہاں پر بھی میری قدرت کی نشانی دیکھو. اب کہنے لگا بھائی چاند پہ جب تم لوگ پہنچ جاؤ گے تو نماز کیسے پڑھو گی. امریکہ کے لوگوں نے کہا چاند پہ یہ لوگ پہنچ جائیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے. ارے چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہو, چاند دیکھ کر عید مناتے ہو, جب چاند پر رہو گے تو روزہ اور نماز کیسے پڑھو گی, عید کیسے مناؤ گی. کیا ہر روز چاند کو دیکھو گے اور عید مناؤ گے. ہم نے کہا ابے عقل کے پٹے, یہ امریکہ تو اتنا بڑا بیوقوف ہے, پتہ نہیں اس کی بس یہی سانپ آپ اور بچھو کے منہ دیکھتے دیکھتے اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ گوبر بھر گیا اس کے دماغ. اس سے پوچھو کہ چاند پہ تو تم بھی رہو گے, اور کام کیسے کرو گے. جیسے تم اور کام کرو گے ویسے ہم بھی نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے. تم بتاؤ کیا انسانوں سے تمہارے تعلقات کیسے ہوں گے. تم ہوا وہاں کیسے لے جاؤ گے, تم پانی وہاں کیسے لے جاؤ گے, تم آکسیجن وہاں کیسے لے جاؤ گے, تم کاروبار وہاں کیسے کرو گے, تم فیکٹریاں وہاں کیسے لگاؤ گے, تم جہاز وہاں کیسے اڑاؤ گے. جب یہ سارے کام تم وہاں کرو گے تو ہم نماز اور روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے اور پڑھ نہیں سکتے. کیا نہیں کرتے. ارے تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ کیا کریں گے. ہم نے تو ان علاقوں میں بھی نماز پڑھ کے دکھلائی ہے. جاؤ اسلام کے ماننے والے ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے, 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات.
वहां के लोगों से पूछो रोजा किस तरह रख रहे हैं, वहां से पूछो मगरिब की नमाज किस तरह पढ़ते हैं जब सूरज 6 महीने डूबता ही नहीं है, वहां पूछो सूरज डूबता ही नहीं है तो रोजा किस तरह इफ्तार करते हैं। हमने तो उस जगहों पर भी रोजे रखकर दिखाए हैं, तुम हमें जानते हो रोजा रखने की तरकीब कर रहे हो, कैसे करोगे? तुम पहुंचो, हमारा ईमान उधर भी जाकर मजबूत होगा। मेरे भाइयों आओ, कुरान ने क्या कहा, शम्सु यंबगी ला, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये क्या है, क्या आप लोग ठीक है, हमारा तो खैर भी मौजूद ही है, मैं तो बताता ही हूँ मुस्लिम के बारे में। मसला ये फिर ये कहते हैं लोग ऐसा कह दिया, वो हिंदू भाइयों में ये हो गया वो हो गया, लफड़ा होता है ये होता है, ये सारी बातें हमारे सामने जब आती हैं तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। हमसे सुबह से एक आ गया गैर मुस्लिमों के बारे में ना बोले, इसलिए छोड़ दिया, वरना हम तो एक कयामत ही में इसी को मिला देते हैं। इतना ज्यादा इसका सबूत है कयामत का वेदों में और रामायण में जिसकी कोई हद नहीं है। तो काने दज्जाल तक का जिक्र है, 7 जहन्नम के दरवाजों का जिक्र, 8 जन्नत के दरवाजों का जिक्र, बाबुल रैयान का जिक्र, रोजे का जिक्र, ईसा का जिक्र, मूसा का जिक्र, जबल तूर का जिक्र, सब मौजूद है। कौन सी चीज छुपी हुई है? बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना बाकी है, वो पढ़ते जाए, अपनी किताब देखते जाए। खैर मौका मिला तो हम बात ले लेंगे इसको, जरा पहले इसको समझो। एक तरफ अल्लाह ने क्या कहा, देखिए कुरान क्या है, ला शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता, चांद अपने दायरे में, सूरज अपने दायरे में। और सूरह कयामा में पढ़िए, क्या सूरह कयामा में, शायद 29वें पारे में सूरह कयामा, सूरह कयामा पढ़िए, जुमिया शम्सु वल कमर। सूरह कयामा में ये बताया गया कयामत की निशानियों में, जुमिया शम्सु वल कमर, जहां बताया गया सूरज की रोशनी छीन ली जाएगी, चांद में नूर हो जाएगा। जुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे, दोनों मिला दिए जाएंगे। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता, चांद सूरज को नहीं पकड़ सकता, कुरान की सूरह यासीन, और उसी कुरान में अल्लाह सूरह कयामा में क्या कह रहा है, चांद और सूरज दोनों मिल जाएंगे। आइए देखिए कैसे मिल रहे हैं, आइए जरा देखिए साइंस किस तरीके से चांद और सूरज को मिला रही है। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज की रोशनी को हम लपेट देंगे, सूरज पे नूर हो जाएगा। वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे पुंज जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। सितारे कैसे बेरौनक होंगे, बेनूर होंगे। सूरज की रोशनी कैसे खत्म होगी, चांद की रोशनी कैसे खत्म होगी। साइंस क्या कह रही है आज, सूरज के अंदर से कितनी गर्मी कम हो रही है और चांद के अंदर से कितनी रोशनी कम हो रही है रोजाना। जरा आप देखिएगा, पढ़ते जाइए। आज की साइंस कहती है 1/27 पावर, 27 पावर। इसका मतलब क्या है, एक लिखो और एक लिखने के बाद 27 जीरो आप आगे लगाइए। ये आपने एक लिखा है और एक लिखने के बाद आप इस पर 27 जीरो आप लगा दीजिए, एक और 27 जीरो, 1 2 3 4, 1 और 27 जीरो, 28 हो गए ना, 28। अब आप गिनिए कितना हुआ, 27 पावर का यही मतलब है। ये सब पढ़ते हो साइंस, लड़के बताना पड़ रहा है कि मुल्ला मौलवी को, ये ड्यूटी भी तुम्हारी हमको निभाना पड़ रही है। जरा सोचिए 27 पावर, एक लिखने के बाद 27 जीरो आप आगे लगाइए और गिनिए क्या हुआ, खोपड़ी भी गर्म हो गई। एक लिखकर 27 जीरो आगे लगाओ, फिर गिनिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, गिनते जाइएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 15 हो गए, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महा 15 और 5 20। मैथमेटिक्स की गिनती खत्म, 7 जीरो बाकी है, अभी 7 जीरो बाकी है और गिनती मैथमेटिक्स की खत्म। यहां से गिनती नहीं, माशर के बाद कोई गिनती है ही नहीं। अब सोचिए आप, इतने जीरो आ गए, इतनी गर्मी सूरज के अंदर से एक दिन में खत्म हो रही है। एक दिन में इतनी गर्मी सूरज की रोजाना कब हो रही है। और जाहिर बात है कि जमीन पर इंसान जब जिंदा रहेगा तो उसको सूरज की गर्मी चाहिए। अनाज
गेहूं, गल्ला, धान, चावल जो जमीन पर बोया जाता है उसको भी सूरज की गर्मी चाहिए। जब इतनी गर्मी रोजाना सूरज से कम हो रही है तो इतनी गर्मी जब सूरज अनाज को कम मिलेगी तो अनाज हमारा नहीं पकेगा और इंसान जिंदा नहीं रहेगा, जानवर जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए जमीन उतनी गर्मी जब देखती है सूरज में कम हो गई है तो सूरज की मकनातीसी कशिश, चुंबक की कशिश, सूरज की किरणें जमीन को उतना ही ऊपर उठा लेती है। थोड़ा सा जमीन धीरे से उतना ही ऊपर की तरफ उठ जाती है। जितनी गर्मी कम हुई उतनी गर्मी हासिल करने के लिए जमीन धीरे से ऊपर उठ जाती है, ऐसे उठ रही है। इसी उठने को हमारे साइंस क्या कह रहे हैं, चल रही है। ये जमीन उठ रही है धीरे धीरे। सूरज की गर्मी कम होती जा रही है और जमीन धीरे धीरे उठती जा रही है। ये है चांद, ये है सूरज और ये है जमीन। देखिए ये जमीन मान लीजिए, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज। जब सूरज से गर्मी कम हुई तो चांद सूरज की गर्मी से जलता है, चांद को भी रोशनी सूरज से मिल रही है। जब चांद इस सूरज से रोशनी कम हुई तो चांद को उतनी रोशनी की जरूरत पड़ी, ये चांद ऊपर की तरफ उठ गया और जब चांद ऊपर की तरफ उठा तो जमीन भी चांद की किरणों से, चांद की मकनातीस से, चांद के चुंबक से ऊपर की तरफ उठ गई। अब देखना, गौर कीजिएगा, चुनिए शख्स, एक दिन आएगा ये धीरे धीरे उड़ते उड़ते चली जाएगी, दोनों ऐसे मिलेंगे, चांद और सूरज, सूरज और चांद में एक जबरदस्त टक्कर होगी, धीरे धीरे उठेगी। और जमीन जब धीरे धीरे उठेगी तो एक दिन आएगा कि इसमें और सूरज के दरमियान में 1 मील का फासला रह जाएगा। कितना? 1 मील का फासला। भाई साहब चलो भैया थोड़ा सा यहाँ ले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां बात कर रहे संस्कृत में बोलना, आप बोल रहे हैं। हाँ भाई बोल रहे हैं संस्कृत यार, फिर आप लोग हमसे, फिर मौलवी हमसे चलेंगे यार। आप संस्कृत सुनना चाहते हो और लोग हमको मना किए हुए सुबह से। मैंने इसीलिए कहा था आपको सुबह से हमें संस्कृत में बोलने के लिए मेरा ये जलसा रखने लगे, पूरा ये करने लगे। ये सब पहले ने बताना चाहिए था कि संस्कृत में बोलना चाहिए था। आपको सुबह से मीटिंग कमेटी किस लिए होती है, बुलाया है क्या बस? जरा सोचिए आपने औरतों के बारे में कहा था सुबह, मौजू आप दे रहे हैं, फिर आप भी बहस कर रहे हैं। जब हम खत्म करने वाले हुए तब कहने लगे संस्कृत बोलो। ठीक है बोल रही आपकी बात कर रहे हैं, पहले इसको तो थोड़ा सा बता देते हैं। फिर ये जो जमीन थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसे ये धीरे से उड़ते 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 इसमें और सूरज के दरमियान में 1 मील का फासला रह जाएगा। देखिए अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है, मुस्लिम शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, तुदन शम्सु यौमल क़यामत मिनल खल्क़ी का मिक़दार मील। कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, मखलूक से 1 मील के फासले पर होगा। इसमें और जमीन में सिर्फ 1 मील का फासला होगा, 1 मील का। अल्लाह के रसूल की हदीस आज कितनी अच्छी और कितनी साबित हो गई, साइंस ने साबित कर दी। ये जमीन धीरे धीरे उठ रही है और उड़ते उड़ते इतने करीब हो जाएगी कि इसके और जमीन के दरमियान 1 मील का फासला रह जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसके और जमीन के दरमियान 1 मील का फासला। अब देखिए क्या होगा, सूरज के अंदर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, चांद और सूरज की टक्कर, दोनों की टक्कर से सूरज और चांद का निजाम बिगड़ा। और जब चांद का निजाम सूरज की और चांद की टक्कर से चांद और सूरज का निजाम बिगड़ा तो सूरज ऊपर की तरफ और चांद नीचे की तरफ हटा। सूरज ऊपर की तरफ और चांद नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ ऊपर जाएगा तो उससे आसमान का निजाम बिगड़ेगा, चांद नीचे की तरफ आएगा उससे जमीन का निजाम बिगड़ेगा। सूरज जब ऊपर की तरफ धक्का, चांद सूरज का धक्का लगेगा तो सूरज ऊपर की तरफ जाएगा, सितारे टूटेंगे, सितारे टूटकर चांद पे गिरेंगे, आसमान सूरज पे गिरेंगे, आसमान टूटेगा, आसमान टूटकर सूरज पे गिरेगा। और जब आसमान टूटेगा और सितारे टूटेंगे और दोनों सूरज पे गिरेंगे तो सूरज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आसमान के और सितारों के बोझ को, ये चांद पर गिरेगा। और चांद इतना भारी वजन बर्दाश्त
گے, کوئی پہاڑ ادھر کوئی پہاڑ ادھر. جب پہاڑ ادھر ادھر جائیں گے تو زمین اتھل پتھل ہوگی, اور جب زمین ایسے ہوگی تو زلزلہ آئے گا. ادھر ادھر پہاڑ چلیں گے. سیرت الجبال والجبال سیرت, ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے, یہ پہاڑ چلیں گے ماروتی جیسے چلتی ہے. جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو اس طریقے سے یہ اتھل پتھل ہوگی, اور جب ایسے ایسے ہوگی تو زمین پر سارا پانی سمندر کا پھیل جائے گا. اور جب زمین پر سمندر کا پانی پھیلے گا تو پانی پوری دنیا میں پھیلے گا, اور سورج اس پانی کے اوپر گرے گا. اور جب پانی پر سورج گرے گا تو سورج کے اندر ہائیڈروجن گیس اور نائٹروجن گیس ہوتی ہے, ایک گیس جلنے والی اور ایک گیس جلانے والی. جب پانی میں سورج گرے گا تو جلنے والی گیس جلے گی اور جلانے والی گیس چلائے گی, آگ لگائے گی. اس طریقے سے پانی میں آگ لگ جائے گی, سمندر میں آگ لگ جائے گی. اور جب سمندر میں آگ لگے گی تو لوگ سمندر بھڑکا دی جائیں گے. قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے. میرے بھائیوں, پورا کا پورا قرآن ایک سائنٹیفک بک ہے, اور اس قرآن کو لانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تھا قیامت کا وہ منظر جو میں نے بہت ہی شارٹ میں لپیٹ دیا ہے, صرف ان ضدی لڑکوں کی وجہ سے. کیونکہ سنسکرت نہیں پڑھیں گے تو شاید یہ لوگ بغیر کرایہ دے کے بتا دیں گے, تو نے میری بات نہیں مانی ہے, میں تجھے کرایہ کیوں ہوں. بڑے عجیب ہوتے ہیں نوجوانوں کو, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میرے بھائیوں, میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس قیامت کو جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ پوری ایک سائنٹیفک بک ہے, اور اس سائنٹیفک بک کو لانے والے بھی سائنٹیفک رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اور آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سائنس تو چلتی نہیں تھی, تو سنیے اتنی بڑی میڈیکل سائنس. اذا وقع الذباب فی شراب احدکم, جب تمہارے کھانے کے برتنوں میں, پینے کے برتنوں میں کوئی مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے جس پر کو وہ مارتی ہے اس میں زہر ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, اور دوسرے پر کو جب تم ڈبو دو گے, اس کو مار ڈالو گے, تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے, شفا اس زہر کو کاٹ دے گی. 1400 سال پہلے الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا, مکھی کے پوائزن اور مکھی کے زہر کو محمد رسول اللہ نے کیسے بتا دیا, ذرا غور کیجیے. اسی لیے اس کا ثبوت دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں. مجھے اگر یہ لوگ بیچارے بتا دیتے کہ آپ کو سنسکرت بھی بولنا ہے, ہماری اٹیچی میں اسی کرشنا لاج میں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے, یہاں پر ڈاکٹر ایم ایس سریواستو کی ایک کتاب ہمارے پاس, ہمارے ہندو پنڈت کی, وہ ہم لے کر آتے اور وہاں پر ہم بتاتے کہ دیکھیے ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اعتراف کیا ہے. وہ کتاب ہماری اٹیچی میں ہے, اگر حوالہ کسی ہندو بھائی کو نوٹ کرتا وہ آ کر نوٹ کر لے گا. اسی کو بتایا ہے ہمارے اتھرو وید کے 20ویں ادھیائے کے اندر, ادتیشان وشنتی مناسی وشتان ویر باسودیو گراجتی پنی گندھان اسپرشام ایششائے مام ہیرششتسترجہ دشسترجہ تریوڑی شتان نورتان. بڑی اچھی بات کہی. اتکلوگت پرائے جریشو کھرگر بھی دھرمت ترارائے ستوید بھگوانو ترشیتی وچرن شنا چھوڑیا ہینا پرتی مگوتی نرپلنگچ دو دس یونی کوٹی شونی ہنشیتی. پہلا منتر اسی کے ساتھ میں نے جوڑا ہے, اب تیشان ہوشیتی مناسی وشتانے میں بازو کے اوپراجتی پنی گندھانی رسپرشان ایششائے ماما ہے رشش تشستا راجا تریوڑی شتان نیورتان. یہ اتھروید کا منتر ہے, یہ والا تریوڑی شتان نیورتان میں وہ کل کی وہ انتم رشیش دھرتی پر آئے گا, اس کو 10 سونے کے سکے دیے جائیں گے, نہیں 10 مالائیں دی جائیں گی, 10 مالائیں, 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے, 300 گھوڑے اس کو دیے جائیں گے, اور 10,000 گایوں کا مالک ہوگا وہ. ہائے میرے انویائیوں, میرے چیلوں, میرے ماننے والوں,
पहनने वाला, 100 सोने के सिक्के रखने वाला, 300 घोड़े रखने वाला और 10,000 गायें रखने वाला ऋषि इस दुनिया में आ जाए तो वो अंतिम ऋषि होगा। तुम उस ऋषि पर ईमान ले आना, तुम उस ऋषि को तस्लीम कर लेना, तुम उस ऋषि के दारुल मलेच धर्म में सम्मिलित हो जाना, उसके धर्म में शरीक हो जाना, शामिल हो जाना। आइए जरा मैं ये देखूं कि 10 मालाएं पहनने वाला कौन था, 100 सोने के सिक्के किसके पास थे, 300 घोड़े किसके पास थे, 10,000 गायें किसके पास थी। यहां जो सोने के सिक्के और मालाएं बताई जा रही है वो उसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इतना किसी के पास ना था ना रहेगा। बल्कि ऋषि और मुनियों के बारे में तो हमारा अथर्ववेद क्या कहता है, आश्रमा शुद्धमारुहा देवदत्ते जगतपति आसीना साधुत मनम षडेश्वर्या। ऋषि मुनि जितने भी आएंगे वो साधुओं की तरह होंगे। साधु का मतलब संन्यास लेने वालों की तरह। संन्यास लेने वाले वो नहीं जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ दें, वो बहुत बड़े कमीने लोग होते हैं। सुन लीजिए, जो जंगल में चले जाएं अल्लाह 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 और राम राम की रट लगाएं, वो साधु संन्यास लेना है ना इस्लाम में है ना हिंदू धर्म के अंदर। अगर रामचंद्र जी संन्यास लेते तो उनकी बीवी पत्नी सीता जी ना होती, राजा दशरथ ने अगर संन्यास लिया होता तो उनकी 3 पत्नियां ना होती। ये बात गलत है कि संन्यास राम ने लिया है, वनवास किया था वो संन्यास नहीं, रामचंद्र जी की पत्नी थी। और वनवास लेना या संन्यास लेना ये गलत है। आज बहुत से लोग अपने बच्चों को खिलाना पड़ रहा, बीवी को खिलाना पड़ रहा, कमाने की ताकत नहीं, क्या क्या बहरूपिया बन गए। बहरूपिया समझते हो, मोटी देखा जहां ऊंची खूब कबर है, बैठ गए वहां, क्या होगा, 11वीं की बेगे तो आएंगी ही, मुहर्रम के खिचड़े तो आएंगे ही। अब हराम के लुकमे तोड़ने लगे, क्या हुआ, बस खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोटी रोजी मिल रही है, कहीं जंगल में चले गए, क्या हुआ, अल्लाह का वली बैठा हुआ है, बहुत बड़ा वली होगा, क्या हुआ, कौम के हराम के लुकमे तोड़ रहा है, कमा नहीं रहा है। यहाँ लाके नबी ने कितनी अच्छी तालीम दी, तुम अपनी बीवी के लिए कमाओ भी, बच्चों के लिए कमाओ भी, और नमाज के वक्त नमाज भी पढ़ो। अब इन बच्चों और बीवियों के लिए जब तक तुम कमाते हो तब तक तुम इबादत में रहते हो, जितनी देर तुम कमाओगे इबादत का सवाब मिलेगा। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जब तुम अपनी बीवी को प्यार से लुकमा उठाकर उसके मुंह में रखते हो तो उस पर भी अल्लाह सवाब देता है, पुण्य देता है, क्योंकि तुम अपनी बीवी के साथ बैठे हो, इस पर भी सवाब है। उन कमबख्तों को पकड़ पकड़ के खींचो और उनसे कहो कमीनों रिक्शा चला चला के पेट भरो। ये हराम के लुकमे न तोड़ो, कौम की रोजी रोटी पर मत फूलो, ये गलत है। तो एक तरफ तो वो ये कह रहा है हमारा अथर्ववेद, क्या कह रहा है, साधु मनम षटेश्वर, वो साधुओं की तरह होंगे ऋषि मुनि। जाहिर बात है साधुओं के पास 10 मालाएं कहाँ होंगी, 100 सोने के सिक्के कहाँ होंगे, 10,000 गायें कहाँ होंगी, 300 घोड़े उनके पास कहाँ से आएंगे। पता ही चला कि यहाँ जो बात कही गई वो ऐसे ऋषि और मुनि के बारे में, और यहाँ सोने के सिक्कों से मुराद वो नहीं है, या मालाओं से मुराद वो नहीं है, उसकी मीनिंग गलत ली गई है। मतलब ये है कि आदमी मालाएं जो होती है, माला गले में पहनी जाती है ना, और गले से जब माला पहन लेते हैं तो वो सीने से चिपक जाती है। जरा सुनिएगा, अथर्ववेद 20वां कांड, क्या कहा गया, 100 ये 10 मालाएं, माला पहनने के बाद इंसान चूंकि सीने से चिपकी होती है, पता ही चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी के 10 लोग इतने खुलूस वाले होंगे गोया कि वो नबी के सीने से चिपके होंगे। अल्लाह के नबी के वो 10 साथी मुराद हैं जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत में जाने की खुशखबरी दी थी, पैराडाइज में एंटर करने की, एंट्री की परमिशन दी थी। कहा था अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। उसके बाद 6 सहाबा को आपने और जन्नती बताया था। 10 सहाबा चूंकि वो हर वक्त आपके दिल के करीब थे, जिस तरीके से माला दिल के करीब होती है उसी तरीके से वो 10 सहाबा इतने करीब थे कि आपने इसी दुनिया में उनको पैराडाइज में, उनको जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी दे दी थी।
आइए जरा देखते हैं 100 सोने के सिक्के। आदमी आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी दौलत खर्च कर रहा है। हमारा बेटा MBBS में आ जाए, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्च करता है, मेरा बेटा MBBS कर ले। रूस चला जाए, MBBS के बाद रसिया में जाकर MD की डिग्री फ्री में मिल रही है। हम अपने बेटे को हम रूस भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, ऑक्सफोर्ड भेज दें। मेरे भाइयों, आज वो रुपया पैसा खर्च तालीम पे कर रहा है। मोहम्मद साहब के पास या अंतिम ऋषि अंतिम के पास, कल्कि के पास, अंतिम संदेष्टा के पास, कल्कि अवतार के पास, अंतिम महेश दूत के पास, अंतिम संदेष्टा के पास, लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर के पास 100 सोने के सिक्के होंगे। यानी सोने के सिक्के चूंकि तालीम पर खर्च होते हैं, इंसान की पढ़ाई लिखाई पर पैसा सबसे ज्यादा खर्च होता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खर्च होता है। तो ऐसे 100 लोग मुराद हैं जो तालीम और तरबियत में लगे हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा की तादाद भी 124-25 बताई जाती है, जो असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से मशहूर थे और जो बैठकर तालीम हासिल किया करते थे। लगभग यानी कहा जा रहा कि वो 100 ही होंगे, नहीं लगभग 100 होंगे, 124 लगभग। उसके पास 300 घोड़े होंगे। घोड़ों को आदमी क्यों रखता है, इसका मतलब क्या हुआ? घोड़े आदमी क्यों रखता है, इसका मतलब आपको मालूम है? घोड़े आदमी इसीलिए रखता है कि उस पर बैठकर, पहले जमाने में इसलिए रखे जाते थे कि उस पर बैठकर हम मैदान जंग में कूद जाएं। घोड़ों से मुराद घुड़सवार। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घुड़सवार थे पहली जंग के अंदर, जंगे बदर के अंदर? 313। उसके पास 300 घोड़े होंगे लगभग। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 300 घुड़सवार थे जो युद्ध में काम आए। 300 घोड़ों से मुराद यही मतलब है। और 10,000 गाय। गाय चुके, गाय क्यों कहा गया? कहते नहीं यार वो आदमी, अरे मत पूछो यार, वो तो बहुत सीधा है, बस वो तो समझो अल्लाह की गाय है। कभी आपने सुना होगा, अरे वो तो बिल्कुल गाय की तरह सीधा है। गाय, कोई गाय बहुत खतरनाक भी होती है, ये मत कहिए, आपको दौड़ा देगी, लेकिन अक्सर गाय सीधी होती है। और गाय को सज्जनों से और सीधेपन से ताबीर की गई है। और गाय के में एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि अगर आप उसको पालें तो वो आपकी होगी, दूसरा उसको ले जाए तो वो उसकी वफादार बन जाएगी, तीसरा उसको ले जाए तो वो उससे भी अपना दूध दुआ लेगी। मेरे भाइयों, वो बहुत सीधे, बल्कि जिस तरीके से उनको चलाया जाए वो चल जाएंगे। ये मुराद है 10,000 गायों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा मुराद हैं जो फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ थे। इतने सीधे, जैसा नबी ने कह दिया वैसा कर दिया। उमर फारूक ने जरूर टेढ़ी नजर करके कहा था, अल्लाह के नबी आज मक्का हमारे हाथ में आ गया, आज ऑर्डर तो काफिरों की गर्दनें उड़ा दो, इन्होंने बहुत सताया है, आज तो ये हमारे हाथ में है मक्का। आपने कहा नहीं, ला तस्रीब अलैकुम लियाओ, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, अंतुम मुतलका, जाओ तुम आजाद हो। जब अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया कि सबको आजाद करो, सबको आजाद कर दिया गया, सब मान गए। ये 10,000 की तादाद थी। और गौर करिए आप, एक ही मंदिर में 10 माला, एक ही मंदिर में 100 सोने के सिक्के, और उसी मंदिर में 300 घोड़े, और उसी मंदिर में 10,000 गायें। और ये पूरी की पूरी सादिक आ रही है, सत्य उतर रही है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। वरना हमारे कोई हिंदू भाई, हिंदू पंडित जी यहाँ मौजूद हो तो वो हमको बताएं कि उनके यहाँ 300 घोड़े कौन रखता था, वो बताएं कि 10,000 गायें उनके यहाँ कौन रखता था, वो हमको बताएं कि वो 100 सोने के सिक्के किसके पास थे, वो हमको बताएं कि 10 मालाएं किसके पास थी। आज तक कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई उसका खुलासा नहीं कर सकता। विचरण न सुना छोड़िया है ना प्रतिमगुति निर्पणेंगे छुटो मसीहू निकोटी सोनी हनिशिया भी। स्कंद 12 मंत्र 6 श्लोक नंबर, स्कंद 12 श्लोक अध्याय, स्कंद 12 मंत्र नंबर 6 और श्लोक नंबर 14। हवाला मेरे अटैची में अभी भी बंद है, देख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। बड़ी अच्छी बात कही, विचरण न सोना छोड़े। कैसा होगा वो जो अंत में आएगा, आखिरी रसूल, अभी उसका नाम बताऊंगा मैं। कैसा होगा? विचरण न सोना, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर कि तुम्हारे विचारों में आएगा ही नहीं।
विचरण ना सुना, उसकी खूबसूरती और उसके सुंदरता को कोई विचार पैवस्त नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत। आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, निगाहें चुप जाएंगी, इतना रौब, इतना दबदबा होगा उसके चेहरे। हमारे हिंदू भाइयों, थोड़ी देर के लिए बुरा ना मानो, जरा मुझे ये बता दीजिएगा आपके यहाँ खूबसूरत है कौन? आप बताइए, विचरण ना सुना, ऐसा तो बताओ जिसको जो बहुत ज्यादा सुंदर हो। हनुमान जी हैं, उनके पीछे पूंछ लगा दी, चेहरा देखो ऐसे बुला दिया। कोई किसी को ले लो तो उसके 10 सर बना दिए, किसी के 10-10 हाथ बना दिए। सुंदर है कौन आपकी? विचरण न सुना, छोड़िया है ना पड़ती मधुकी दिन पड़ेंगे तो दसियों निकोटे सोने हरिश्चंद्र, इतना सुंदर हो जाओ कि तुम्हारे विचारों में नहीं आएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नजर डाल लो, अगर तुम मान सकते हो तो मानो, क्योंकि उसका नाम अभी मैं बहुत जल्द बताऊंगा। इस सुंदर व्यक्ति का नाम क्या होगा हमारी हदीस में नहीं, तुम्हारी किताब उसका नाम बताएगी। हवाला न दिखाओ, नंदी कुटकुर के चौराहे पर ले जाकर कत्ल कर देना। हवाला आज मेरी ये बेटी में भी मौजूद है और पंडित भी वाला तुम्हारा, लेकिन मुझे मालूम है कि आज तुम नहीं आओगे मेरे पास, बहस करना होगी तो कल करोगे, कहोगे उल्टा सीधा बोल के चला गया, जबकि कल ब्यादोरी में रहूं। सोचो मेरे भाइयों, मैं तुमको आज बुला रहा हूं, आ जाओ, अपने पंडित जी की किताब देख लो, उसमें नाम महावत भी देख लो, मंत्रों को भी नोट कर लो, जाओ किताब खोल कर देख लो, अगर वो नाम मिल जाए तो मान लो, न मिले तो जो सजा देना चाहो मुझे दे दो। हम तुम्हें अपने कुरान की दावत देकर अपनी तरफ नहीं बुलाते हैं, तुम्हारे पंडित जी अपनी गीता पढ़ के मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं, और हम तुम्हें तुम्हारी रामायण, तुम्हारी गीता, तुम्हारे वेद पढ़ के अपनी तरफ बुलाते हैं, इसलिए कि तुम्हारे वेद भी हमारी सच्चाई का गवाही दे रहे हैं, हमारी हक्कानियत का सबूत दे रहे हैं। और जिसकी जो गिज़ा हो उसको वही ना खिलाना चाहिए। अब घोड़े को गोश्त खिलाओ, खा लेगा क्यों? उसकी रोजी वो नहीं है, उसकी गिज़ा वो नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों को कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहेगा यार क्या पढ़ा, ला 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 ला, हमारी समझ में तो आ ही नहीं रहा है। जो आसान आपके यहाँ है, आपके यहाँ, हम मुसलमानों के, वो आसान आपके यहाँ पर भी मौजूद है। देखो अल्लाह उपनिषद के अंदर, अल्लाह उपनिषद, वो आजाद आपके यहाँ पर भी है। अस्मल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रावरो इल्लल्लाह मिल्लल्ले, अस्मल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह मिल्लल्ले इल्लल्लाह मित्रावरो इल्लल्लाह। ये क्या है? अस्मल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह इल्लल्ले, ये क्या है? ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल है। अल्लाहु अकबर से मोहम्मद, अल्लाहु अकबर से मोहम्मद, अल्लाह अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल है। अल्लाह अकबर से, अल्लाह सबसे बड़ा है, और यही मतलब यहाँ पर भी अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और तर्जमा भी पंडित जी का है। वेद प्रकाश उपाध्याय ने भी यही अर्थ, यही मीनिंग की है, और यही पंडित जी हमारे आपके NS श्रीवास्तव ने किया है, जो हमारी किताब में आज भी मौजूद है, हमारी अटैची में रखी हुई है, आप देख लीजिएगा। अल्लाह अकबर से, अल्लाह सबसे बड़ा, मोहम्मद मोहम्मद उसके रसूल है, मोहम्मद रसूल है, नाम भी बता दिया, मोहम्मद रसूल है। लेकिन सवाल ये कि इसके बावजूद NS श्रीवास्तव जी भी ईमान नहीं लाए बेचारे, तो ये कोई गारंटी नहीं है भाई। अब महात्मा गांधी कहते थे कुरान के कानून को नाफिज कर दो, हिंदुस्तान में खून बंद हो जाएगा, तो खुद कुरान को नहीं माने तो इसमें अब क्या किया जाए? वो एक अलग चीज है। लेकिन उन्होंने एक काम किया है जो एक शुभ काम है, अच्छा काम है, कम से कम हिंदू मुसलमानों को दोनों को मिलाने की बात तो की है उन्होंने। किताब में हक्कानियत तो साबित की है, सच्चाई तो बताई है उन्होंने। जैसे हमारे एक बरेली भाई है मौलवी साहब, उन्होंने भी एक हकीकत बतला दी है। उन्होंने कहा सब हौसलेबाजी है। मैंने कहा जरा बताओ तो सही, ये कैसा इंसाफ है कि जहां मीलाद पढ़ा जाए खड़े हो जाओ, अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, खड़े हो गए साहब, अल्लाह के नबी आ गए। मैं नंदी कुटकुर में
मिलाद पढ़ने खड़ा हो जाऊं, अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक आदमी हैदराबाद में मिलाद पढ़ रहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा नबी हैदराबाद और नंदी कुटकूर के बीच में क्या करे? वहां हैदराबाद वाले कह रहे हैं यहां जाओ, और यहाँ नंदी कुटकूर वाले कह रहे हैं कि यहां जाओ। हमसे सवाल करते हो कि दो फरिश्ते कैसे सारी दुनिया की कब्रों में चले जाएंगे? मुझे बताओ, एक ही नबी हैदराबाद वाले भी बुलाते हैं और नंदी कुटकूर वाले भी बुला रहे हैं, बताओ मेरा नबी कहां जाएगा? मेरा नबी करनौल में खड़ा है बेचारा, या अल्लाह मैं यहां जाऊं कि यहां जाऊं? यहां भी चीखे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और यहां भी पुकार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आदौनी वाले भी चीख रहे हैं, हैदराबाद वाले भी, और मेरा नबी कुरनूल के बीच में क्या करे? अल्लाह हैदराबाद में जाऊं या मैं आदौनी जाऊं, कहां जाऊं? हैदराबाद वालों ने कहा नहीं मेरे यहां आना है। उन्होंने हाथ पकड़ा, या आदौनी वालों ने हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा तूने हाथ पकड़ा, वो पैरों में लटक गए, तो ये भी पैरों में लटक गए। मेरे भाइयों, नतीजा ये हुआ कि मेरा नबी ना हैदराबाद पहुंचा ना आदौनी पहुंच पाया। उसको छीना झपटी में लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर डाला, और अगर टुकड़े टुकड़े न किया होता तो किसी को नबी का न बाल मिलता, न चोगा मिलता, न पगड़ी मिलती, न छड़ी मिलती। ये छीना झपटी का ऐसा नतीजा और ऐसा रिजल्ट निकला कि छीना झपटी में कोई नबी की पगड़ी ले गया, कोई नबी का पैजामा ले गया, कोई नबी का जुब्बा ले गया, कोई नबी की चप्पल और जूता ले गया, कोई नबी का कदम मुबारक ले गया, और कोई नबी का मुंह मुबारक ले गया। वो कहता मेरे यहाँ नबी का बाल है। हाँ क्यों? करनौल में थे, छीना झपटी में नोच के आ गए। क्या कर बोलो? तो अगर छीना ना होता तो नबी को का बाल तुम्हें न मिलता, नबी की छड़ी तुम्हें न मिलती। ये सारी चीजें जहां मेरा नबी पैदा हुआ सऊदिया, वो उनको न मिली, तुम्हें कहां से मिल गई? अजमेर में गया, कहने लगा मौलवी साहब ये तुमने देखा है नबी का बाल था, 5 रुपए दो। हमने कहा क्यों? कहा तबर्रुक है। हमने कहा इस बाल से नहीं मिला, मुझसे ले रहा है, वहां भी लग रहा है 24 नंबर है क्या? हमने कहा 5 नहीं 500 दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहने लगा क्या? मैंने कहा जरा माचिस की तीली से जला के देखता हूं, जल गया तो नबी का नहीं, ना चला तो नबी का 500 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहा? हमने कहा 1400 साल से आज तक इस बाल का कुछ नहीं बिगड़ा। मैदान करबला जैसी जंगें हुई, तूफान आया, आंधियां आई, लेकिन ये तेरे पास वो भी धड़ मुद्दे बेदाढ़ी बेमूछों वाले आदमी, तेरे पास ये बाल कहां से आ गया? मैं ज़ोहर पढ़ के आता हूं, तू ज़ोहर की नमाज भी नहीं पढ़ा, तेरे पास कहां से आ गया? कहने लगा है तो नबी का, लेकिन तुम्हारे पहचानने का तरीका गलत है। हमने कहा क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला था, तो आग, नमरूद की आग इब्राहिम का बाल न जला सकी, एक रोंगटा भी न जला सकी। जब इब्राहिम का बाल नमरूद की आग से बच सकता तो मेरे नबी का बाल क्यों नहीं बच सकता? कहने लगा ये दलीलें वहाबी लोग देते, जा 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 जा, तुझसे एक पैसा नहीं दूंगा, चला मेरी रोजी रोटी पर लात मारना। ये छीना झपटी यहाँ पर भी हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी खूबसूरती का जिक्र किया, विचरण न सुना, छोड़े आईना पति मगुति निर्पलिंग छिदे दसमन कोटि शोलियानिश्वती। इतना सुंदर होगा कि वो विचारों में नहीं आएगा। अल्लाह की कसम, मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि हजरत हसन इब्ने साबित से किसी ने पूछा, अय हसन, नबी बैठे क्या कहते हैं इनके बारे में? हजरत हसन क्या जवाब देते हैं? वो अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ व अजमलु